جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکاء نے وطن عزیز کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عہد کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ KMC ورکشاپ میں تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا۔ سجن یونین کے صدر ذوالفقار شاہ نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامی کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر ذوالفقار شاہ کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی کے لیے بلدیاتی ملازمین کا اہم کردار رہا ہے جو جاری رہے گا۔ دیکھیں جی، پیغام تو ہم کیا دے سکتے ہیں، قائد اعظم نے پہلے ہی دیا تھا کہ کام اور تنظیم تاج یقین محکم۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اسی ہی عمل پہ ان کی فرمان پر اگر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ سندھ سالڈ ویسٹ کراچی کے ایگزیکٹو آپریشن مینیجر طارق علی نظامی نے کہا کہ وطن عزیز قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ میں یہی قوم کو کہ قوم اپنا حوصلہ بلند رکھیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ملک کی طرف ہوتی ہیں وہ ادا کریں۔ تقریب میں یونائیٹڈ ورکرز یونین ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جنرل سیکریٹری وارث گلناز نے اقلیتی برادری کی پاکستان کی ترقی کی خدمات کو بیان کیا۔ جی، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا تھا تو 11 سپتمبر کو انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ تمام مذہب تمام مسلک آزاد ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے عبادت گاہ میں آزادی سے جا سکتا ہے۔ تقریب میں خواتین اور بچے بھی آزادی کے جشن کا حصہ بنے دکھائی دیے۔ کوئی بھی قومیت ہو، مل جانا شرط ایمان، ایک جسم ایک جان ایک رسول ایک خدا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان جو ہمارے اکابرین نے جدوجہد سے ہمارے لاکھوں مسلمانوں کی، ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی شہادتوں سے جو ہے ہمیں یہ وطن ملا۔ جشن آزادی کی تقریب میں دیگر مزدور یونینز کے نمائندوں جاوید بلوچ، گل اسلام، راجہ عاصم اور ریحان قاضی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے کراچی کے قونصل خانے میں 3 روزہ تقریبات کا انعقاد ہوا۔ UAE قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے اسپیشل بچوں کے ساتھ یوم آزادی کی خوشیاں منائی۔ سلمان سلیم کی رپورٹ۔ شادی کے رنگ UAE قونصل خانے میں بھی بکھر گئے۔ UAE قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے ڈیف بچوں کے ہمراہ یوم آزادی کی خوشی۔ قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے UAE گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان کی پوری قوم کو 76ویں جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ جشن آزادی کی تقریبات گزشتہ 3 دن سے UAE قونصل خانے میں جاری رہی ہیں۔ تاہم UAE قونصل خانے کو پاکستان کی جھنڈیاں، پرچم، غباروں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ قونصل خانے میں منعقد ہونے والی تقریب میں شریک بچوں، سفارتکاروں اور شہریوں میں پاکستان کے بیجز، قومی پرچم اور اعزازی شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ سلمان سلیم، سٹی 21، کراچی۔ جشن آزادی کے سلسلے میں مشنری اسکولز میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹ جوڈ ہائی اسکول میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب میں طلباء و طالبات نے ملی نغموں پر ٹیبلوز پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ آزادی کے سلسلے میں بیشتر تعلیمی اداروں میں چھوٹی بڑی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ نارتھ ناظم آباد ڈسلوا ٹاؤن میں قائم قدیم کیتھولک اسکول سینٹ جوڈس ہائی اسکول میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول پرنسپل اجاز خوشی نے خصوصی گفتگو میں کہا کہ طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ اصل میں پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے جو بہت ساری قربانیوں کے بعد جو ہے وہ وجود میں آیا، اور آج ہم خاص کر جو ہے وہ اپنا خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اپنے قائد کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو، جن کی کاوشوں سے، جن کی سرپرستی میں ہماری قوم نے یہ علیحدہ وطن حاصل کیا۔ اسکول کے اساتذہ اور طلباء نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ ہم بچوں کو یہ موٹیویشن دینا چاہتے ہیں کہ یہ دن کتنا امپورٹنٹ ہے، اس دن کے بارے میں کہ 14 اگست ہمارے لیے بہت اہمیت، اور کس طرح ہم نے یہ ملک آزاد کروایا، ہم اس ملک میں آزادی سے رہتے ہیں، تو یہ سب بچوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، ایکٹیویٹیز کے ذریعے سکھانا چاہتے ہیں۔ 14 اگست ہے، آج ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا، اور پاکستان آزاد ہونے کی خوشی میں ہم یہ دن مناتے ہیں، انڈیپینڈنس والا دن۔ ہم نے 2 دن پہلے کپڑے خرید لیے تھے اور میں بہت مزہ کیا، ملی نغمے گائے اور ہم لوگوں نے نعرے لگائے
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और बहुत मज़ा किया अपनी क्लास में हमने। स्कूल के फिजिकल ट्रेनर परवेज रांझा ने भी जश्न आज़ादी की मुनासिबत से बजरिया इशार अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, इस पर तन मन कुर्बान, मेरी जान है पाकिस्तान। सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान इस मुल्क की हैं पहचान, करे रांझा रब से यही दुआ हो जाए एक जान, मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान। तकरीब में तुलबा की जानिब से मुख्तलिफ टैबलूस भी पेश किए गए, जबकि नन्हे मुन्ने तालिब इल्मों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। जश्न आज़ादी के सिलसिले में नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खुसूसी बच्चों को मुआशरे से अलग नहीं कर सकते। उनके लिए अलहदा पार्क्स और तालीमी इदारे बनाएंगे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। ने आज़ादी के मौके पर फलाही तंजीमें भी पेश नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की जानिब से खुसूसी बच्चों में व्हील चेयर तकसीम की गई। तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खुसूसी बच्चों को माशरे से अलहदा करना गलत है। इन्होंने स्पेशल बच्चों के लिए अलहदा पार्क्स और तालीमी इदारे बनाने का भी ऐलान किया। मैं तो चाहता हूँ बजाय इसके कि हम इनके लिए खुसूसी चीज़ें बनाएं, हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि माशरे का हिस्सा बनेंगे, इज्जत से अपना रोजगार भी कमाएं, इज्जत के साथ मुआशरे का हिस्सा बने। और मैं चाहूँगा सर 2 चीज़ों के ऊपर काम करें। कोई पार्क बनाते हैं, उस पार्क को हम उसकी एक्सेस को हम ऐसा बनाएं कि ये बच्चे खुद खेल कूद सके, वहाँ पर इन बच्चों को किसी की जरूरत ना हो। नुसरत ट्रस्ट के चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद मोहिउद्दीन और फाइनेंस डायरेक्टर अब्बू तलहा ने कहा कि खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। एक पाकिस्तान का एहसान, दूसरा पूरी उम्मत पर एहसान। इन 2 एहसानों की वजह से मैं हमेशा पीपल्स पार्टी की क़यादत को दावत भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये तशरीफ भी लाते हैं। हमने व्हील चेयर यानी कि फराम की और हमारे चीफ गेस्ट जो थे मुर्तज़ा वहाब साहब थे और हमारे जो चेयरमैन हैं मुफ्ती जो मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब, उन्होंने बड़ा आज ऐलान किया कि हम लोग इन माजूर बच्चों के लिए हॉस्पिटल, हॉस्टल और इनके लिए नर्सरी स्कूल, हाई स्कूल तमाम इंशाल्लाह एक ही इदारा, एक ही यानी कि 4 दीवारी के अंदर वो करेंगे, तामीर करेंगे। तकरीब में खुसूसी बच्चों और अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेयर कराची को गिलाफे काबा का टुकड़ा बतौर हदिया पेश किया गया। कैमरामैन इमरान AK के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। करंगी 5 नंबर में कायम मॉडल पार्क में कामरान मिन्हास फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। बात करेंगे सादत हुसैन से। सादत, बताइएगा फेस्टिवल के हवाले से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है और इस वक्त हम कोरंगी 5 नंबर पे कायम मॉडल पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे कामरान मिन्हास फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब का बस आगाज़ होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इरफान भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद तकरीब के हवाले से जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि जश्न आज़ादी की आमद है, तकरीब का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, पहले तो बहुत शुक्रिया आप मीडिया वाले भाइयों का, आप तशरीफ़ लाए। देखिए, हर साल यहाँ मॉडल फैमिली पार्क कोरंगी 5 में बट ब्रदर्स मॉडल फैमिली पार्क और कामरान मिन्हास फाउंडेशन की तरफ से 14 अगस्त की बहुत बड़ी तकरीब होती है। इंशाल्लाह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कामरान मिन्हास फाउंडेशन और बट ब्रदर्स के ताउन से बच्चों को तोहफ़े बांटे गए हैं। केक का एहतमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह 100 पाउंड का केक है, कल इंशाल्लाह वो भी कटेगा और इंशाल्लाह म्यूज़िक शो होगा और आवाम इंशाल्लाह लांडी कोरंगी खूब एंजॉय करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तकरीब का आगाज़ हो गया, कोई खुसूसी शख्सियात जो है उनकी आमद है? देखिए, इंशाल्लाह पुलिस के आला अफसरान है, इलाकाई MP MN जो साहब का ही हो गया अब तो, और टोन जो चेयरमैन है वो आएंगे इंशाल्लाह। हमने सब सियासी जमातों को भी दावत दी है, खुसूसी तौर पर पुलिस के आला अफसरान को, कि पुलिस को यहाँ पे अवार्डों से नवाजा जाएगा। बहादुरी जो पुलिस वालों ने की हुई उनके ऊपर उनको अवार्ड दिए जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये थे इरफान भट्ट साहब। इनकी जानिब से ये बताया गया है कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए और खुसूसी तौर पे कोरंगी 5 नंबर के जो रिहाइश है उनके लिए जो है इस इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी जो उनको भी दावत दी गई है। साथ साथ जो है फैमिलीज़ की यहाँ पे आमद का सिलसिला जारी है। नन्हे बच्चों के दरमियान जश्न आज़ादी के हवाले से जो चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट की गई, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो माहौल जो है बिल्कुल गर्मा गर्म है और जो है जश्न आज़ादी को मनाने के लिए इस वक्त तमाम जो शहरी हैं वो तैयार हैं। जी, जामिया आज़ादी के हवाले से 7 पुलिस ने CVU के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी है। 2 SPs, DSPs और 7 SHOs तैनात किए गए हैं। SSP साउथ शराज नज़ीर के मुताबिक 50 से ज़ायद एहलकार CVU के अतराफ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हेडक्वार्टर से इजाफी नफरी को तलब किया गया है।
یوم آزادی کے حوالے سے ساؤتھ پولیس نے سی وی یو کے اطراف سیکیورٹی سخت کر دی. 2 ایس پیز ای ایس پیز اور 7 ایس ایچ اوز تعینات کیے گئے ہیں. ایس ایس پی ساؤتھ شراز نذیر کے مطابق 50 سے زائد اہلکار سی وی یو کے اطراف سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے. جشن آزادی بھرپور انداز سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں. کراچی کے رہائشی علی جگرو نے وطن سے محبت کا انوکھا انداز اپنایا ہے. پرچموں سے سجی 16 فٹ لمبی موٹر سائیکل تیار کر لی. کراوان کی رپورٹ میں دیکھیے. کی سب سے لمبی موٹر سائیکل کا اعزاز کراچی کے شہری کے نام علی جگرو نے جشن آزادی منفرد انداز میں منانے کے لیے 270 کلو وزنی موٹر سائیکل بنائی. موٹر سائیکل کی لمبائی بھی 16 فٹ لمبی ہے. علی جگرو جب موٹر سائیکل لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں. علی جگرو کا کہنا ہے کہ 1 اگست سے 14 اگست تک موٹر سائیکل کو اسی طرح سجا کر کراچی کی سڑکوں پر پھرتے ہیں. ابھی ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں, ابھی آزاد نہیں ہے. آزادی تو بنا رہے ہیں مگر ذہنی طور پہ ہم لوگ ابھی غلام ہیں. جب آزاد ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بھی اتار دوں گا میں. 60 سالہ جگرو سر پر جنا ٹوپی, گلے اور ہاتھ میں زنجیر پہنتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں اور غلام رہیں گے. 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک میں یہ جھنڈا لگاتا ہوں لائٹوں والا, اس کے بعد ہی سیٹ لگ جاتی ہے تو یار دوست بیٹھ جاتے ہیں تو چلاتا رہتا ہوں میں. علی جگرو کا کہنا ہے 2 موٹر سائیکلوں سے تیار کردہ موٹر سائیکل پر 12 افراد بیک وقت بیٹھ سکتے ہیں. وطن سے محبت کا سب کا الگ اور انوکھا انداز ہوتا ہے مگر علی جگرو نے وطن سے محبت کے لیے 14 اگست کی مناسبت سے 16 فٹ لمبی ایشیا کی بائک بنا ڈالی. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ اقرا اوان سٹی 21. جشن آزادی منانے کے انوکھے انداز فلاحی ادارے کی جانب سے آزادی ہارس مارچ منایا گیا. پاکستان کے جھنڈوں سمیت ترکیہ, کشمیر اور دیگر دوست ممالک کے جھنڈوں کے ساتھ مارچ ہوا. اس حوالے سے جانتے ہیں آئمہ خان کی رپورٹ میں. پاکستان کے 76ویں جشن آزادی منانے کے لیے ہارس فلیگ مارچ فلاحی ادارے زوبی ماما ہارس رائڈنگ کی جانب سے کیا گیا, جس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہارس رائڈنگ کلب کے انچارج کا کہنا تھا کہ مارچ وطن سے محبت کا اظہار ہے کہ پاکستان ایک مضبوط پرامن ملک ہے اور اپنی خوشی میں اپنے برادر ملکوں کو یاد رکھتا ہے. اسی لیے ہماری ریلی میں آپ کو پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا, ترکی اور سعودیہ عرب, آذربائیجان اور ترکی کے جھنڈے دکھائی دیں گے. ہارس رائڈنگ مارچ کے شرکا بھی پرجوش دکھائی دیے. کہتے ہیں ہم مارچ سے بتانا چاہتے ہیں کہ گھوڑوں کی سواری آج بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. شرکا نے قوم کو مل جل کر یکجہتی کے ساتھ رہنے کا پیغام بھی دیا. صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ڈفرینٹ ریجنز میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ اتحاد کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور محبت اور بھائی چارے جیسے کہ قائد اعظم کا قول ہے. آج کے حوالے سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسکلی یہ ہے گھوڑ سواری اور یہ ہمارے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اچھی چیز ہے کہ لوگ ہارس رائڈنگ کریں اور پھر اپنے سکلز بڑھائیں. آزادی ہارس مارچ کلفٹن 3 تلوار سے شروع ہو کر ڈرگ روڈ شارع فیصل پر جا کر اختتام پذیر ہوئی. مارچ میں پاکستان سمیت ترکیہ, کشمیر اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جھنڈے بھی شامل کیے گئے تھے. کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ آئمہ خان سٹی 21. LRBT اور OGKH کی جانب سے منفرد موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا. موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے 2 تلوار سے کلفٹن پر جا کر اختتام پذیر ہوئے. سلمان سلیم کی رپورٹ. آزادی کا جشن, ہیوی بائک رائیڈرز بھی ان ایکشن. LRBT اور ہارلے آنر گروپ کی جانب سے رائڈ فار سائٹ نامی ریلی کا انعقاد ہوا, جس میں کلفٹن کی سڑکوں پر مختلف نوعیت کی ہارلے ڈیوڈسن موٹر بائک دوڑائی گئیں. LRBT کے کمیونیکیشن کوارڈینیٹر حارث حسان نے کہا کہ یوم آزادی کے اس موقع پر شہریوں کو یکجہتی کا پیغام دینا ضروری ہے. انڈیپینڈنس ڈے اور ہمارے لیے بھی بہت سمبولک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ پاکستان کے جو ویژولی امپیئرڈ افراد ہیں ان کو اندھیروں سے آزادی دلانا ہے. تو یہ آزادی کے ساتھ یہ بہت میچ کرتا ہے مشن, اور انڈیپینڈنس ڈے سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے اس طرح کے ایونٹ کو ہولڈ کرنے کا, جہاں پر سب ایک ساتھ مل کر یونائٹ ہو کر ایک دوسرے کے کازز کو سپورٹ کریں. ہارلے آنر گروپ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ ریلی کا مقصد LRBT کو سپورٹ کرنے کے ساتھ یوم آزادی کی خوشیاں منانا بھی ہے. اس وقت بھی میرا خیال ہے یونٹی کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اینڈ وی آل نیڈ اس وقت, کیونکہ تھوڑے سے سینٹیمنٹس بھی لوگوں کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں نیچرلی, اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کو مزید جذبہ اجاگر کرنے کے لیے اور
मज़ीद एक्टिविटीज़ जनरेट करने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम टू डू सच एक्टिविटीज़ एंड दिस इज़ अ कमेंडेबल जॉब डन बाय LRBT। दो तलवार से शुरू होने वाली बाइक रैली सीव्यू पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद होंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध ने शाह फैसल से लेकर नुमाइश चौरंगी तक काफिला आज़ादी निकालने का ऐलान कर दिया है। कामरान टेसूरी बोले, कल बहैसियत कौम हम यौम आज़ादी इस तरह मनाना है कि हम पूरी दुनिया हमारे जश्न को देखकर हैरान हो जाए। ताहा मलिक की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध ने जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की ठान ली। यौम आज़ादी के मौके पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए गवर्नर सिंध खुद मज़ार कायद पहुँचे। कामरान टेसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में काफिला आज़ादी निकालने का ऐलान कर दिया। काफिला आज़ादी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी कौमियतों, फ़िरक़ों और सियासी जमातों से बालातर होकर पाकिस्तान का परचम हाथ में लेकर दिल से इस मज़ार कायद तक पहुँचे। गवर्नर सिंध ने शहर में यौम आज़ादी की नामुकम्मल तैयारियों पर मेयर कराची से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मेयर कराची से भी अपील करूँगा कि वो निकले फ़ौरन और कराची का दौरा करें। आज सुबह से मैं निकला हुआ हूँ, पूरी शाह फैसल, पूरे कराची को देखा है। किसी एक पोल पर, किसी एक खंबे पर मुझे पाकिस्तानी परचम नजर नहीं आ रहा है। कामरान टेसूरी ने मजीद कहा कि पड़ोसी मुल्क भारत में यौम आज़ादी के मौके पर बैक वक्त 1 लाख अफराद ने कौमी तराना पढ़कर रिकॉर्ड बना रखा है। इंशाअल्लाह हम ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ तहा मलिक, सिटी 21। नुमाइश चौरंगी पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें अरकान राबता कमेटी समेत रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हैं। इस मौके पर रुकन राबता कमेटी जाओ सदीकी का कहना था कि नौजवानों को पैगाम है कि एक कौम बनकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद माजिद से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल यौम आज़ादी की आमद है, कल 14 अगस्त है और आज ही हम देख रहे हैं कि हर जगह पर जो है वो चांद रात जैसा समा है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो छोटे बड़े पैमाने पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो है वो यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ राबता कमेटी के रुकन रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, कल 14 अगस्त है और हम आज देख रहे हैं कि जोशो खरोश जो है वो जवानों का उरूज पर है। देखिए, 14 अगस्त 1947 ये हमारे बानियान पाकिस्तान की औलाद, ये इनकी विरासत है, ये इनका हक़ है कि इस आज़ादी के लिए पूरे बरसगीर के लाखों मुसलमानों ने हिंद ने कुर्बानी दी थी और तब जाकर ये आज़ादी हमें हासिल हुई। और ये आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता 9 दिन से अशर आज़ादी मना रहे हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है, तामीर पाकिस्तान का दिन है और अहद करने का दिन है कि इस दिन जानों पे खेल गए पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान कायम हुआ। तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो और बहुत मुबारक हो। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि अपनी तारीख़ के पस मंज़र को जाने, अपनी तारीख़ के पेश मंज़र को जाने और एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म पर अपनी जद्दोजहद को मरकूज़ करें। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, 76 बरस तो गुजर गए, लेकिन अगला बरस फिर हमारा होगा जिसमें हम खुद तामीर करेंगे पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका ये कहना था कि नौजवानों को आज के दिन पर ये पैगाम है कि वो एक कौम बनकर दिखाएं और एक कौम के ऊपर जो है वो मुत्तफिक हों। हमने पाकिस्तान के लिए इनका ये कहना था कि लाजवाल कुर्बानियाँ दी और इस पाकिस्तान को आज़ाद करने के लाखों लोग जो है वो कुर्बान हुए। तो ये जो दिन है ये बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है और हर पाकिस्तानी के लिए, और इसका एक अलग ही जज्बा होता है। और इसी मुनासबत से जो है वो आज मुत्तहिदा पाकिस्तान ने भी नुमाइश चौरंगी पर यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया और साथ ही इनका ये भी कहना था कि जो है वो इस दिन को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और जोश व खरोश के साथ जो है वो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से यौम आज़ादी पर नगमा जारी कर दिया गया है।
शहर भर की तरह कोरंगी दारुस्सलाम कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। शाम मौसीकी में फैमिलीज और खुसूसी तौर पर बच्चों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कोरंगी में दारुस्सलाम कोऑपरेटिव सोसाइटी में फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल के मुंतजिम नासिर कुरैशी का कहना था कि फेस्टिवल में झूलों, मैजिक शो, केविज मुकाबले समेत दीगर प्रोग्राम मुनक्किद हुए। ये हमने बच्चों के लिए झूले रखे आपके सामने और है ना सारा फूड स्ट्रीट रखा है, खाने पीने की जगह है, क्योंकि दारुस्सलाम मैनेजमेंट की तरफ से ये स्पॉन्सर किया गया और लाइव शो है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट आएंगे और तमाम मेंबरों से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जश्न आज़ादी के अंदर पूरी सोसाइटी से ना लोग आएंगे। फेस्टिवल के इनेकाद पर बच्चा पार्टी ने खुशी का इजहार किया और खूब हल्ला गुल्ला किया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अभी यहाँ पर झूले भी बहुत सारे हैं, बच्चे भी बहुत सारे झूले झूल रहे हैं, यहाँ पर स्टॉल भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। खाना पीना तो ये कोकोनट वाटर है, गोल गप्पे, बर्गर, फ्राइज और झूले वगैरह वही एंजॉय कर रहे हैं और रात में जो है वो फंक्शन होता है तो वो होगा तो वो एंजॉय करेंगे। अभी यहाँ पर अभी सोचा है कि बहुत सारे झूले झूलेंगे, रात को 14 अगस्त के कपड़े पहन कर आएंगे, शलवार कमीज, चीज़ें खाएंगे पियेंगे, मज़ा आएगा। ट्रैम्पोलिन झूला है, कश्ती झूली है। मेरी फ्रेंड और मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। फेस्टिवल में खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां फैमिलीज मजे मजे के खानों से लुत्फ अंदोज होते रहे। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। लांडी में 14 अगस्त की मुनासबत से खसूसी मार्केट सजाई गई है। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। आज़ादी का जश्न, शहर कायद के अवाम भी इन एक्शन। जश्न आज़ादी की मुनासबत से शहर भर में मुतअद्दिद मकामात पर बेशुमार स्टॉल सजाए गए हैं। इसी मुनासबत से लांडी सेक्टर 4 में 1 अगस्त से खुसूसी मार्केट सजाई गई है, जहाँ नत ने डिज़ाइन के सब्ज़लाली परचम, मलबूसात, झंडियाँ, बैजेस और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहे हैं। इसको झंडियाँ दिलाऊंगा, बैजेस वगैरह इसने एक तो ले लिया, इसके हाथ में भी है, और बस झंडियाँ और फ्लैग वगैरह लूँगा अभी घर के लिए। आज शॉपिंग का लास्ट डे था, इसलिए मैं पापा के साथ में शॉपिंग करने आई थी बाजार में और हमने बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट किया है। कल हमारे स्कूल में फंक्शन है, हम इसकी तैयारी क्या लिए कपड़े लिए, चूड़ियाँ, बैग। हमने कपड़े वगैरह ले लिए हैं अब, लेकिन बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह ले रहे हैं और ना ब्रेसलेट वगैरह ले रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि चीज़ें लेंगे दिल ही नहीं चाह रहा, समझ रहे क्या लें क्या नहीं लें। बच्चों के कपड़े तो हमने सारे ले लिए, बस और छोटी बड़ी चीज़ें ले रही हैं ना, वही शॉपिंग कर रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था बढ़ती महंगाई में 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। यह हमारी आज़ादी का दिन है, इस जश्न को मनाने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभालेंगे। एजाजी गार्ड में 2 दस्ते शामिल होंगे। एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स, दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल होगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मोहम्मद खालिद होंगे। सिंध सरकार ने 20 और 21 ग्रेड के 3 अफसर की उखाड़ पिछाड़ कर दी है। वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज अहमद जतोई समेत 20 और 21 ग्रेड के अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। की अफसरशाही की उखाड़ बिछाड़ का अमल तेजी से जारी। कोई ओहदा खो बैठा तो किसी को नया ओहदा मिल गया। वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज अहमद जतोई का तबादला करके सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस सेक्रेटरीट अब्दुल रहीम शेख को वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इजाफी आर्जी चार्ज दे दिया गया है। सेक्रेटरी बराए महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ आगा अब्दुल रहीम सेक्रेटरी मादनियात तैनात। सेक्रेटरी मादनियात खालिद चाचड़ को ओहदे से हटा दिया गया और उनसे डायरेक्टर जनरल मादनियात का भी चार्ज वापस ले लिया गया। खालिद चाचड़ को महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। सिंध सरकार ने सेक्रेटरी जामियात बोर्ड मोहम्मद मुरीद राहमो को भी ओहदे से फारिग कर दिया। मोहम्मद मुरीद को महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन सैयद खालिद हैदर शाह को सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड बना दिया गया। स्पेशल सिक्योरिटी स्कूल तालीम गुलाम अली बरहमानी को तबादला करके नया सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया गया है। सिंध सरकार ने 20 ग्रेड के अफसर डायरेक्टर जनरल गोरख हिल तरक्याती अथॉरिटी नजमुद्दीन सत्तू का तबादला करके डायरेक्टर जनरल मलीर तरक्याती अथॉरिटी तैनात कर दिया गया।
जबकि मोहम्मद यासीन शर बलोच से डीजी मलिर तरक्याती अथॉरिटी का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है और मोहम्मद यासीन शर बलोच डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ओहदे पर बरजुमान रहेंगे। आज़ाद नूरियो, कराची। सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर राना अंसार और पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कल शाम फिर मुशावरत होगी। एजाज जमाली की रिपोर्ट। बनेगा वजीर आला और अपोजिशन लीडर में ताहाल इत्तेफाक ना हो सका। दोनों रहनुमा पीर की शाम फिर सर जोड़ेंगे। वजीर आला हाउस में अपोजिशन लीडर राना अंसार ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से 1 घंटे तक मुलाकात की, जिसमें निगरां वजीर आला के नामों पर मुशावरत हुई। ताहम किसी भी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। जहन देखें वहाँ जाके क्या होता है, अंदर जाके मुशावरत शुरू होती है और उसके बाद बताते हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना अंसार ने कहा कि 1 दर्जन से जायद नाम है जिस पर पार्टी लीडरशिप से मशवरा करूंगी। निगरां हुकूमत के लिए जो नाम जितने मेरे आगे ये माइक लगे हुए हैं, इतने ही दर्जनों भर नाम थे। तो जब इतने नाम होंगे तो फिर बताइए कि उसमें मुशावरत में वक्त भी लगता है। तो ये इतने सारे नाम थे कि उसके ऊपर हमें नाम डिस्कस करने के लिए एक वक्त दरकार है। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने उम्मीद जाहिर की कि पीर तक किसी नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा। काफ़ी नाम जो हैं वो ज़ेर बहस लाए गए, डिस्कस हुए और सब नाम ही बहुत ज़्यादा मोहतरम और मोतबर लोग हैं और लेकिन कोई भी हतमी बात अभी तक नहीं हुई। इंशाल्लाह मामलात हल हो जाएंगे। सिंध में निगरां वजीर आला के लिए उम्मीदवारों की तवील फहरिस्त भी एक बड़ी रुकावट है। रहनुमाओं का कहना है कि पीर की शाम होने वाली मीटिंग में नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से सजरकारी की अपील की है और कहते हैं कि दावत इस्लामी ने पौधा लगाओ और दरख्त लगाओ का स्लोगन अच्छा बनाया है। हमें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की खातिर दरख्त लगाने की जरूरत है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद को सर सब्जो शादाब बनाने का अज़म। जियाले मेयर ने अवाम से शजरकारी करने की अपील कर दी। मेयर कराची ने दावत इस्लामी के रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अतारी के हमरा बिलाल चौरंगी का इफ्तिताह किया और डिप्टी मेयर के हमरा बिलाल चौरंगी पर शजरकारी भी की। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची बोले, हमें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की खातिर पौधा लगाना चाहिए। दीनी एतबार से कुरान शरीफ हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हो, ये बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं कि इससे बेहतर सदका जारिया नहीं हो सकता। इस मौके पर दावत इस्लामी के रुकन शोरी हाजी हबीब अतारी का कहना था कि शहर को माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का पौधा लगाना होगा। मैं अहले वतन से गुजारिश करूंगा, हमारा वतन भी, हमारा परचम भी ग्रीन है। इस बार यौम आज़ादी पर, बल्कि हर साल यौम आज़ादी के लिए एक नियत कर लें कि सब जिलाली परचम भी लगाएं, एक एक पौधा भी लगाएं, उस पौधे को दरख्त बनाएं। हमारा वतन सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा, यहाँ ठंडी हवाएं चलेंगी, आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ मिलेंगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमारे वतन को खुशहाल कर दे और जितने लोग इस नेक काम में हमारा साथ दे रहे हैं, रब्बे करीम उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। शहर को माहौल दोस्त बनाने और शजरकारी को फरोग देने पर मेयर कराची ने दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का भी इज़हार किया कि KMC के ताउन से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी करने में तेजी लाई जाएगी। कैमरामैन इब्राहिम अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।